ہمیشہ سرفہرست ہوتا ہے. سب سے پہلے سارا کے لیے بھرپور کلیپنگ کر دیں. سارا کا نہ صرف یہ کنٹریبیوشن ہے, اس کے علاوہ اکثر پاکستان میں چند کچھ گندے انڈے جو پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز وہاں کیا ان کی قربانیاں ہیں. اس میں سارا کی قربانیاں اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ ان سے ذاتی طور پہ بھی مل سکتا ہے. ان کے پوسٹرز لگائے گئے, ان کے بل بورڈز پہ واحد خاتون ہے جن کا نام غردار کے لکھا گیا. ہر سٹی ہر صوبے میں ان کے بل بورڈز لگے. ان کے گھر توڑا گیا, ان کے فیملی کو گھر بدر کیا گیا, ان کی والدہ کو گھر بدر کیا گیا. اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کی کیا قربانیاں ہیں, تو ایک قربانی کی سب سے بڑی مثال سارا میر ہے. سارا میر کے ایک کریڈینشل یہ اپنے ساری جو اپنی تکلیف ہے ایک المیہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ لے کے اپنی پرابلمز کو یہاں امبیسی نائٹ برج میں جو ہمارے سفیر ہیں فیصل جاوید صاحب, ان کے پاس لے کے گئی اور انہیں اپنی پرابلمز بتائیں. اور ایک لیٹر انہوں نے پرائم منسٹر ایک لیٹر پرائم منسٹر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں یہاں آ کے سٹامر کو بھی دیا. ایک خط ہمارے امبیسی فیصل جاوید کو بھیجا گیا اور ایک پرائم منسٹر کو دیا گیا. فیصل جاوید نے وہ لیٹر لیک کیا اور ان کے گریوینسز جتنے تھے ان کو پبلک کیا, اور یہاں کے پرائم منسٹر نے اس لیٹر پہ کیس ٹیک اپ کیا اور بتایا کہ جو بھی ہمارے ادھر کے اوورسیز پاکستانی یا ہمارے جو برطانوی شہری ہیں ہم ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ ہے فرق. اس پہ اور بھی میں آپ کو بہت سی چیزیں بتا سکتا ہوں لیکن ٹائم کی قلت ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں سارا میر. تھینک یو سو مچ. اچھا سارے لوگ ذرا تھوڑے سے ادھر متوجہ ہو جائیں پلیز. آپ سب کے ٹائم کا بہت شکریہ. آخری چیز اور 2 سے 4 منٹ آپ لوگوں کے لیں گے. آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں بٹھا کے لے کے جائیں. اس پیغام کو ہر گلی ہر کوچے ہر بچے تک پہنچائیں اور یہی آپ کا پیغام ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب اگر کوئی آخری شخص ہوگا آپ کے ساتھ کھڑا تو وہ سارا میر ہے. کیا آپ وہ آخری شخص ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جب جب عمران خان صاحب بلائیں گے آپ آئیں گے؟ کیا آپ آئیں گے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کیا جب جب عمران خان صاحب بلائیں گے آپ آئیں گے؟ کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں صرف چند ایک باتیں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب آپ کی قربانیاں تاریخ میں لکھی جا چکی ہیں اور عمران خان صاحب نے جو قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہیں وہ کسی نے آج تک نہیں دی ہے. آج پاکستان کو اوورسیز بار بار آتا ہے, اپنا ٹائم نکال کے آتا ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے. جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاضری لگوانے جا رہے ہیں. میں فلسطین کے ہر ایک پروٹیسٹ میں آتی ہوں اور وہاں پہ لوگ عقیدت آتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم نے کھڑے ہونا ہے. آج عمران خان کے جو حقوق وائلیٹ کیے جا رہے ہیں مجھے صرف اس پہ بات کرنی ہے. آصم منیر ہو یا وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو یا وہ سٹنگ سپریم کورٹ کا جج ہو, آپ لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے. پچھلے 10 دن سے عمران خان صاحب کی فیملی کو عید سے لے کے ابھی تک ان کے گھر والوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور وہ قیادت جب ہم ان پہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ نالا نظر آتی ہے. آپ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا. آج عمران خان کو 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. آئسولیٹ
हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ख्वाब में कभी खान साहब नहीं आए हैं। आज सुबह 6 बजे मेरी ख्वाब में खान साहब आते हैं, मैं उनसे जेल में मिलने के लिए जाती हूँ और मैं वहां जाके कहती हूँ खान साहब पूरे 25 करोड़ लोग आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपने इस मुल्क को ठीक करना है। I'm sorry, आप जब मैं खान साहब से बात करती हूँ तो खान साहब कहते हैं क्यों घरों से क्यों नहीं निकलते हैं? मैंने ठेका उठाया हुआ इन लोगों का, मेरी जिम्मेदारी है। 25 लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, तो मुझे अजीब सा हो जाता है। मैं फौरन से कहती हूँ ये मुर्दा लोग हैं। खान साहब इतने खफा होते हैं मेरे साथ, वो कहते हैं कभी अपनी कौम को ऐसा मत बोलना। मैंने कहा खान साहब आप इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो इन्हें क्यों समझ नहीं आ रही? अपने घरों से निकलो। वो शख्स तुम्हारे लिए पिछले 600 दिनों से कैद है, उसके घर वालों को मिलने नहीं दिया जाता, उसको नमाज़े ईद नहीं पढ़ने दी जाती, उसे कुरान करीम नहीं दिया जाता। तुम क्यों नहीं बोलते हो उसके हक में? लोग निकलते हैं, लोग हमेशा निकलते हैं, लेकिन लोगों को ऐसे निकलना होगा जैसे निकलने का हक है। मैं कहती हूँ खान साहब आप लोगों तक अपना पैगाम भिजवाएं। खान साहब मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, that was in my dreams, और सडनली मैं देखती हूँ मैं इस कदर हो रही होती हूँ। मेरी सिस्टर ने कहा क्योंकि आपको प्रोटेस्ट पे जाना है इसलिए आपके जहन में आ रहा है। मैंने कहा 2 साल से खान साहब कभी मेरे ड्रीम में नहीं आए हैं। सो आज जिस तरह के आप बिल पास करवा रहे हैं, आज जिस तरह की आप अपने लिए मजे लूट रहे हैं, क्या आपको एहसास नहीं होता कि आपने उस शख्स के नाम पे वोट लिया है? क्या आपको ये एहसास नहीं होता कि वो 72 साल का है? तुम लोग उसकी जेल को नॉर्मलाइज कर रहे हो। तुम्हारे अंदर गैरत खत्म हो रही है, तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो रही है, तुम्हारे अंदर पाकिस्तानियत खत्म हो रही है। ऐसा नहीं होता। अगर इमरान खान साहब आप मेरे लिए खड़े हुए हैं तो इमरान खान साहब सारा मीर अकेली भी रह जाएगी तो वो आपके लिए आवाज उठाएगी। खान साहब मैं किसी डिवीजन पे बिलीव नहीं करती हूँ। खान साहब मैं ये बिलीव करती हूँ जितने लोग जितने प्रोटेस्ट रखे तमाम पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, उन सब का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने आप सबको लीडर बनाया। इमरान खान साहब ने ऐसे ओवरसीज आपको एक पहचान दी। जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत थी। आज इमरान खान जेल में है तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी में धकेल दिया गया है। आज पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, माए बहनें सड़कों पे घसीटते हैं। कोई बोलता है तो कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज है, कोई पकड़ा नहीं जाता है तो कहते हैं ये मुलविस है। और खुदा के बंदो सब आवाज उठाओ, ये तुम सबका फर्ज है, ये पाकिस्तान तुम सबका है। आसिम मुनीर को मैं आखिरी एक पैगाम दूंगी। आसिम मुनीर साहब आप खुदा नहीं है, आसिम मुनीर साहब आप खुदा नहीं है। खुदा वाहदहुल्ला शरीक है जिसने हम सबको पैदा किया, जो कुल कायनात का मालिक है। अगर फलस्तीन के बच्चे इस्राएली फोर्सेस से नहीं डरते हैं तो आसिम मुनीर तुमसे मैं भी नहीं डरती। इंशाल्लाह हम भी नहीं डरते, हम कोई तुमसे नहीं डरते हैं। तुम्हें अपनी डोमेन में वापस जाना चाहिए, तुम्हें चलगोज़े नहीं उगाने चाहिए, तुम्हें मरियम के साथ रक्षे कमर पे बैठना नहीं चाहिए, तुम्हें इस तरह के कैटलन हॉर्सेस में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा मुल्क इस टाइम दहशतगर्दी की लपेट में है और आप लोगों को अगर इतना ही शौक है तो आप इलेक्शन लड़िए और आके वजीर आजम बनिए। पाकिस्तान की जमहूरियत का गला मत काटे, मत काटे पाकिस्तान की जमहूरियत का गला। इमरान खान साहब को मिलने दे उसके लोगों से। अगर आप में इतनी जुर्रत है इमरान खान के लोगों को प्रोटेस्ट करने दे पाकिस्तान में, फिर वो आपको दिखाएंगे। आप माएं उठा लेते हो, बहनें उठा लेते हो, कर तोड़ देते हो लोगों के कि लोग बाहर न निकले। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जितने लोगों को उठाते हो वो उतने ज्यादा बहादुर होते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान की बका की खातिर सोचो, आसिम मुनीर पाकिस्तान की खातिर सोचो। इमरान खान ने तुम्हें लेटर लिखा, तुम लेटर को पढ़ने से इनकार करते हो। आज एक चीज मैं पटवारी से भी कहूंगी कि जैसे मेरे भाई ने पहले कहा, नवाज शरीफ बेलारूस जाता है तो कहता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, बेटी कहती है ये मेरी बेटी है। पटवारियों को
कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिलता, कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिलता। ये पटवारियों को भी अपनी गैरत का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए। और ये पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो तुम आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी बुलाए हैं वहां पे कि वो आएंगे अरबों खरबों की जो है इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, सारा झूठ। तुम इतने कमजोर हो गए, तुम अमेरिका गए, तुम यूके आए, तुम ईरान गए, तुम चाइना गए, तुम अफगानिस्तान गए, तुम हर जगह पे जा रहे हो कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये तुम्हारी कॉन्स्पिरेसीज है। आज तुम कहते हो पाकिस्तान के मिनरल भी बेचो क्योंकि तुम्हें अपनी एक्सटेंशन का डर है, लेकिन पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। कोई तुम्हें कोई सौदा नहीं करने देगा। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी रेजिस्ट करेंगे, ये बार बार बात करेंगे। अगर कोई आखिरी शख्स भी रह जाता है तो वो हम होंगे, हर जगह पे आवाज उठाएंगे। तुम्हारे जो डोमेन्स हैं वो अपनी जगहों पे होनी चाहिए, सियासत में नहीं होनी चाहिए। और खान साहब आखिरी में फिर यही कहेंगे कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। खान साहब, हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, लेकिन हम आवाज उठा सकते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा आपके लिए आते हैं। मैं आखिर में कहूंगी, जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, जहां तक ये आवाज जारी हो, खुदा के लिए अपना फर्ज समझ के निकला करें। जब आप निकलते हैं, आपकी तादाद से इन्हें डर लगता है। जब लोग पूछते हैं कि हम निकलेंगे तो क्या होगा, जब आपको इतने बड़े नंबर्स में ये देखते हैं तो इन्हें डर लगता है, इन्हें खौफ आता है कि ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होते हैं। और ये रेजिस्टेंस होती है जो दिखाना जरूरी होती है। लास्ट चंद एक नारों के साथ, फ्री फ्री